Welcome again, young learners, to this part of the video series of microeconomics. In this part, we will be doing the second unit of microeconomics, that is the consumer's equilibrium and demand. Here first we will be starting with the consumer's equilibrium. Here we will be learning about what consumer equilibrium is, how does the consumer attain the equilibrium, that is कहाँ उसे maximum satisfaction मिलता है, किस तरीके से वो purchasing का decision लेता है. तो before we start with the concept of the consumer equilibrium, we have to learn certain basic concepts or the basic terms. The first term is consumer. We should know who a consumer is. A consumer is an economic agent who consumes goods and services for the direct satisfaction of his wants. That is कि consumer एक ऐसा economic agent यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि goods and services को consume करता है so that his wants could be satisfied, ताकि उसकी wants को वो satisfy कर सके. That means anything consumed by a consumer is generally to satisfy his wants. जो भी चीज़ वो consume कर रहा है वो अपनी wants को satisfy करने के लिए कर रहा है. इसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यूटिलिटी, जो हम बार बार चैप्टर में देखेंगे. द यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी की वांट सैटिस्फाइंग पावर को, दैट इज कि वो आपकी वांट को कितना सैटिस्फाई कर सकती है. विल टेक एन एग्जाम्पल ऑल्सो. द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी. यानी कि कमोडिटी की वांट सैटिस्फाइंग पावर को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं. सपोजिंगली द फूड हैज़ द power to satisfy the hunger, the water has the power to satisfy the thirst, so that is known as the utility of the commodity. So utility of the commodity is the want satisfying power of the commodity. The more will be the want, the more will be the utility of that particular commodity. That is कि आपको उसकी जितनी ज़रूरत होगी वो आपके लिए उतनी ही utility create करेगी. Further इट इज़ मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स. हम ये मानकर चलते हैं कि यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, इसमें मेजर किया जा सकता है. सो द यूटिलिटी इज मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स. दैट मीन्स व्हेन वी विल बी डूइंग द कॉन्सेप्ट वी विल सी दैट आफ्टर कंजम्पशन ऑफ पर्टिकुलर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी की कुछ यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद हम उसका यूटिलिटी मेजरमेंट करते हैं, कंज्यूमर का यूटिलिटी मेजरमेंट करता है, एंड दैट यूटिलिटी मेजरमेंट इज डन इन द कार्डिनल नंबर्स. एंड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूटिल्स. हम देखते हैं जैसे किसी भी कमोडिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स होती है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ वी टॉक अबाउट द वेजिटेबल्स, वी जस्ट बाय इट इन द किलोग्राम्स. इफ़ वी टॉक अबाउट द मिल्क, वी बाय इट इन द लीटर. सिमिलरली द यूटिलिटी हैज़ इट्स मेजरमेंट इन यूटिल्स. यानी कि जो यूटिलिटी का मेजरमेंट है हम किस में करते हैं? यूटिल्स में करते हैं. सो एक बार फिर से देख लेते हैं. यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. दैट इज कि कमोडिटी की जो वांट को सेटिस्फाई करने की पावर है, ऐसा मैंने आपको बताया, फूड हैज़ द पावर टू सेटिस्फाई द हंगर, is known as utility, and it is measured in cardinal numbers, that is 0, 1, 2, 3, 4 could be the utility. The unit of measurement of utility is known as utils. That means we will present it as 1 utils, 2 utils, 3 utils, 4 utils and so on. Now we have the characteristics of utility. यानी कि utility की क्या characteristics है? Characteristics का मतलब क्या होता है? That are the features of utility. The first characteristic is utility is subjective. Subjective का मतलब है कि it depends upon intensity of want. किस पर depend करती है? Intensity of wants पर. Depends upon intensity of wants. यानी कि जितनी ज़्यादा आपको उस कमोडिटी की ज़रूरत होगी वो कमोडिटी उतनी ही आपके लिए यूटिलिटी क्रिएट करेगी. सपोजिंगली फूड इन द टाइम्स ऑफ हंगर, starvation,
the food has more utility for the consumer than in the normal times. So it depends. ये क्या करता है? Depend करता है on the intensity of wants. If I am thirsty, very thirsty, the water will create more utility for me other than the normal time. यूटिलिटी इज वेरिएबल. यूटिलिटी वेरिएबल है. वेरिएबल का मतलब यहाँ हम वेरिएबल को 3 सेंसेस में लेते हैं. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, it varies from place to place, and it varies from time to time. तीनों के एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. यूटिलिटी इज वेरिएबल, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. जिस कमोडिटी की यूटिलिटी मेरे लिए है ज़रूरी नहीं है उसी कमोडिटी की यूटिलिटी दूसरे पर्सन के लिए भी हो. सो इट डिपेंड्स. इट इज variable person to person. A chalk is required by a teacher, but for other person who's not a teacher is not required. So person to person vary करती है. Similarly, if I talk about this marker, it is required by me. It will create utility for me, but not for a person who's not a teacher. Similarly, it varies from place to place. कमोडिटी की यूटिलिटी जो है प्लेस टू प्लेस वेरी करती है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ वी टॉक अबाउट दी वार्म क्लोथ्स, वार्म क्लोथ्स की बात करें तो that those warm clothes will not have any utility in the south में उसकी कोई utility नहीं होगी. But if we talk about the parts whereby there are more there are the seasons of cold, that woolen clothes will create more utility at that place. So it varies from place to place. If the commodity is required, if we talk about the woolen clothes, those are required more in the cold places than that to the places which are hot. Then we have time to time. Again we can take the example of woolen clothes. Time to time उसकी utility vary करती है. The woolen clothes are not having any utilities during the summer, but same woolen clothes will be having the utility during the winter. So the utility is variable. It varies from person to person, it varies from place to place, and it varies from time to time. Then we have utility and usefulness are different concepts. Students at time get confused between the utility and usefulness. See, first we will talk about the usefulness, then we will go to utility. किसी भी कमोडिटी का यूज़ बना रहता है चाहे आप उसे यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट दिस मार्कर विल बी हैविंग अ यूज़ टू राइट ऑन द बोर्ड. तो इसका यूज़ वही बना रहेगा चाहे मैं इसे यूज़ कर रही हूँ चाहे मैं इसे रख दे रही हूँ. लेकिन यूटिलिटी अराइजेज आउट ऑफ द वांट्स, यानी कि किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी उसकी ज़रूरत से क्रिएट होती है. दैट मीन्स कि द यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट इज देयर व्हाइल द यूजफुलनेस इज ऑलवेज सेम. यूजफुलनेस या यूज़ हमेशा कांस्टेंट है, जबकि यूटिलिटी जैसा हमने किया वेरिएबल है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, टाइम टू टाइम वेरी करती है. सो इट डिपेंड्स और इट अराइजेज आउट ऑफ द वांट. सो वी शुड हैव अ क्विक रिविजन ऑफ ऑल द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स. 1, the utility is subjective, that is it depends upon the intensity of want. More is the requirement, more the commodity will create the utility. The second one is the utility is variable. Utility variable है, varies from person to person, time to time and place to place. Then we have utility and usefulness are different concept. That is the usefulness will remain constant irrespective of its use. यानी कि चाहे उसको use किया जाए या ना किया जाए, usefulness will remain constant, but the utility arises out of the wants. That is more is the requirement, more will be the utility creation by the commodity. आप इसका एक screenshot ले सकते हैं. So हमने किया concept of utility. We know that the utility is measured in terms of utils. हम utility को measure करते हैं utils में. अब हम करेंगे the concept of utility, in which we will be doing 2 concepts that were as total utility and मार्जिनल यूटिलिटी. 2 कॉन्सेप्ट्स हमारे पास हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी. सबसे पहले हम करेंगे टोटल यूटिलिटी. द टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ
पर्टिकुलर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि किसी भी कमोडिटी की पर्टिकुलर यूनिट्स को कंज्यूम करके जो यूटिलिटी मिल रही है दैट इज नोन एज द टोटल यूटिलिटी। टोटल का मतलब कहीं पर भी ये नहीं है कि आपको एक डेटा गिवन है आप उसको पूरा टोटल कर दें। टोटल का मतलब है इट इज पर्टिकुलर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। सपोजिंगली हमारे पास है कमोडिटी एक्स, हमारे पास है कमोडिटी एक्स। हम जब भी टोटल यूटिलिटी लिखेंगे तो टोटल यूटिलिटी इज जनरली रिटन एज टी यू। एक्स की बात करेंगे तो एक एक्स लगा देंगे, इट शोज द टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स। यूनिट्स ऑफ एक्स हैज बीन टेकन 1 2 3 4 5 6। टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स 1 यूनिट के कंजम्पशन से जो टोटल यूटिलिटी मिल रही है वो है 20, 2 यूनिट्स के कंजम्पशन से मिल रही है 35, 3 यूनिट्स के कंजम्पशन से 45। तो ये पर्टिकुलर यूनिट है। पर्टिकुलर यूनिट का मतलब है कि सपोजिंगली कोई मुझसे पूछे कि 5 यूनिट्स पर टोटल यूटिलिटी क्या है, द टोटल यूटिलिटी एट 5 यूनिट्स इज 50। Similarly, the total utility at 6 unit is 45. So, the total utility implies corresponding to particular unit. किसी भी unit के corresponding, यानी कि first unit के corresponding कितना है 20. Similarly, fourth unit के corresponding कितना है 50. तो it becomes the total utility. Now we have the concept of marginal utility. The marginal utility is change in utility. हम देख रहे हैं change in utility. Change in utility on account of change in units. यानी कि हमने जब फर्स्ट यूनिट से सेकेंड यूनिट का कंजम्पशन किया, हमने जब फर्स्ट यूनिट से सेकेंड यूनिट का कंजम्पशन किया तो टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया, दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हम मार्जिनल यूटिलिटी के 2 फॉर्मूलाज करेंगे। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इफ वी टेक कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू TUN माइनस TU एट n माइनस 1। इसे समझने से पहले हम बात करते हैं कि n क्या है और n माइनस 1 क्या है। n क्या है और n माइनस 1 क्या है। n इज द यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स, n माइनस 1 इज द प्रीसीडिंग यूनिट। सपोज करिए हम 3 को n लेते हैं, हमने 3 को nth यूनिट लिया तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, इट विल बी 2। सिमिलरली यदि मैं 4 को n लूँ तो उस केस में n माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। तो इट इज मार्जिनल यूटिलिटी इज मेजर्ड एज TUN माइनस TUN माइनस 1। बेसिकली द मार्जिनल यूटिलिटी इज, यदि हमें nth यूनिट पर कैलकुलेट करनी है तो ये क्या हो जाएगी MU एट nth यूनिट, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी एट nth यूनिट। फोर्थ के केस में हमारी nth यूनिट क्या हो गई 4 हो गई। इस यूनिट पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, फोर्थ यूनिट TU एट फोर्थ यूनिट माइनस TU एट 4 माइनस 1। सो बेसिकली द मार्जिनल यूटिलिटी इज द टोटल यूटिलिटी एट nth यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। अब हम इसे एक एक करके करेंगे। जब हमारे पास, ध्यान रखेंगे कि हमें यदि किसी भी तरीके का स्केड्यूल 1 से गिवन है, हम इस केस में 0 को भी एज्यूम करेंगे। वी विल एज्यूम 0 ईयर कि हमने सोचा कि हमने 0 यूनिट्स को कंज्यूम किया, यानी कि कोई यूनिट्स कंज्यूम नहीं की। जब कोई यूनिट्स कंज्यूम नहीं की तो सेटिस्फैक्शन भी हमारा क्या होगा 0 होगा। सेटिस्फैक्शन भी हमारा क्या होगा 0 होगा। अब हमें करनी है TU एट फर्स्ट यूनिट को कैलकुलेट। तो हम करते हैं TU, मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट पर करनी है। मार्जिनल यूटिलिटी एट फर्स्ट यूनिट इज इक्वल टू TU एट फर्स्ट यूनिट माइनस TU एट 1 माइनस फर्स्ट यूनिट कौन सी हो जाएगी अब हमारे पास 0, यानी कि अब हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है जो है n माइनस 1, तो 1 माइनस 1 पर जो हमारी TU है। तो इसका मतलब है TU एट फर्स्ट यूनिट हमारी कितनी है 20, TU एट 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0, कितनी है 0। इसमें से आप इसे लेस कर देंगे तो जो हमारी टोटल यूटिलिटी यहाँ से निकलेगी वो कितनी निकलेगी 20 निकलेगी। सिमिलरली
अब मुझे करना है सपोजिंगली मार्जिनल यूटिलिटी एट 2, सेकेंड यूनिट पर करना है, तो TU एट 2 माइनस TU एट 2 माइनस 1। TU एट 2 कितनी है हमारे पास 35, 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, 35 और फर्स्ट यूनिट पर हमारे पास कितनी है 20, तो इट रिजल्ट्स इन टू 15। तो ये हमारी क्या चल रही है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x एट वेरियस यूनिट्स। अब हम करें मार्जिनल यूटिलिटी एट 3 की बात, तो इट विल बी TU एट 3 माइनस TU एट 3 माइनस 1। TU एट 3 इज 45, 3 minus 1 is 2 which is 35, that results into 10. Similarly MU4, that is TU4 minus TU4 minus 1, this is 50 minus 45, this is 50 minus 45 is 5। बेसिकली यदि हम इसे बिल्कुल जनरल भाषा में कहें, यदि हम इसे बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में लेकर करें, तो इसका मतलब है कि हमें नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। MU5 इज इक्वल टू TU एट 5th यूनिट माइनस TU एट 5 माइनस 1 विच इज 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। MU at 6 is equal to TU at 6 minus TU at 6 minus 1, this is 45 minus 50 resulting into minus 5. So this becomes the marginal utility at various units, अलग अलग units पर जो हमारी marginal utility है। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर स्टूडेंट्स कि TU n-1 वाला फॉर्मूला केवल तब सक्सेसफुल है जब हमें यूनिट्स कंसेक्यूटिवली दी हुई है। हम एक एग्जाम्पल करेंगे जहाँ पर जाकर हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा एंड दैट फॉर्मूला विल बी मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी। अब यहाँ से लेंगे हम चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। This is one more formula that we will be doing taking certain other example, कुछ और example के थ्रू करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और आप देखेंगे जो है कि total utility is equal to sigma marginal utility corresponding to particular unit। यानी कि कभी आपको आ जाए कि आपको मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करनी है टोटल यूटिलिटी, तो आप किस तरीके से करेंगे? द टोटल यूटिलिटी विल बी कैलकुलेटेड एज TU इज इक्वल टू सिग्मा MU। TU को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिग्मा MU। सिग्मा MU का मतलब है, हमने देखा है, हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप जानते होंगे। क्यूमुलेटिव का मतलब है कि आप इसे डायगनली प्लस करते जाएंगे। सबसे पहला सेम 20, फर्स्ट विल ऑलवेज बी सेम। नाउ विल बी एडिंग लाइक दिस, 20 प्लस 15 इज 35, 35 प्लस 10 इज 45, 45 प्लस 5 is 50, 50 plus 0 is 50 and this is 45. If you see these both are सेम, आप देखेंगे ये दोनों सेम है, 20, 35, 45, 50, 50 and 45. So there are two formulas, mu is equal to TU n minus TU n minus 1 and TU is equal to sigma mu. That means we will be adding up all the values of marginal utility and then we'll be getting the total utility. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपको मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट कर रखा है जब आपको सक्सेसिव यूनिट्स दी हुई है। सक्सेसिव का मतलब 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं आपके लिए एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन लेकर आई हूँ, कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी एट 6th यूनिट ऑफ द कमोडिटी। हमें मार्जिनल यूटिलिटी किस पर कैलकुलेट करनी है? 6th यूनिट पर। तो MU एट 6th यूनिट को पर हमें कैलकुलेट करनी है। When TU आफ्टर कंजम्पशन ऑफ 3 यूनिट्स, यानी कि 3 यूनिट को कंज्यूम करने पर हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी है वो 45 है, जबकि TU आफ्टर कंजम्पशन ऑफ 6 यूनिट्स इज 75। यदि हम अपना पहले वाला फॉर्मूला लें तो यहाँ पर आएगा TU एट 6 माइनस
TU at 6 minus 1, दैट इज़ हमें 6 minus 1 5th यूनिट चाहिए, पर हम जानते हैं हमें केवल 2 ही यूनिट्स दी हुई है, 6th और 3rd। तब जब हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास n minus 1 नहीं है, in that case we apply the formula, this is change in TU upon change in Q। चेंज मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इट इज़ ऑलवेज न्यू माइनस ओरिजिनल। तो MU at 6th यूनिट विल बी चेंज इन TU। TU में कितना चेंज है, 75 माइनस 45 डिवाइडेड बाय चेंज इन Q, 6 माइनस 3, तो दिस रिजल्ट्स इनटू 30 divided by 3, so 10 will become the marginal utility here। So now we have learned two things, that यदि आपको successive units given है then आपका n जो वाला फॉर्मूला है TU n minus TU n minus 1 वाला फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन यदि आपको successive units given नहीं है, in that case we have to apply a formula that is change in TU upon change in Q। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। At times we have the relationship between TU and MU। आप देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास अलग अलग रिलेशनशिप आते हैं बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, एंड यू विल बी सीइंग दैट देयर विल बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स ड्यूरिंग डूइंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो now we will be doing the relationship between total utility and marginal utility। we have taken the same schedule that we have taken earlier। फर्स्ट यूनिट पर TU MU आपको दिए हुए हैं, सेकेंड यूनिट पर एंड सो ऑन। सबसे पहले हम इससे रिलेटेड एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो आप चाहें तो सिंगल ग्राफ पे कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे अलग अलग ग्राफ पर शो कर सकते हैं। सो आई एम टेकिंग इट ऑन द सिंगल ग्राफ, that is units of the commodity will be taken on x-axis while the TU and MU will be plotted on y-axis। जबकि हम TU और MU को y-axis पर प्लॉट करेंगे, तो it is 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 35, 40, then 45 and 50। हमने अलग अलग इसको प्लॉट कर लिया है। हियर विल बी टेकिंग -5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो हम लोग कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। नाउ वी विल बी प्लॉटिंग द डिफरेंट वैल्यूज़ दैट आर गिवन कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट यूनिट्स। सबसे पहले हमारे पास आता है TU को हम प्लॉट करेंगे। फर्स्ट यूनिट पर हमारे पास है 20, और हम जानते हैं कि जब उसने 0 यूनिट्स यानी कि जब कोई कंजम्पशन नहीं किया था तो टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 0। सो वील टेक इट फ्रॉम 0। सेकेंड यूनिट के कंजम्पशन पर द टोटल यूटिलिटी इज़ 35। थर्ड यूनिट के कंजम्पशन पर द टोटल यूटिलिटी इज़ 45। फोर्थ यूनिट के कंजम्पशन पर द टोटल यूटिलिटी इज़ 50। फिफ्थ यूनिट के कंजम्पशन पर भी 50 एंड सिक्स्थ यूनिट के कंजम्पशन पर इट बिकम्स 45। व्हेन विल बी जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स, जब हम सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का कर्व आएगा, दिस इज टोटल यूटिलिटी कर्व। अब हमारे पास आता है प्लॉटिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। दिस इज फर्स्ट यूनिट पर इट इज़ 20, सेकेंड यूनिट पर इट इज़ 15, थर्ड यूनिट पर 10, फोर्थ यूनिट पर 5, फिफ्थ यूनिट पर 0 एंड सिक्स यूनिट पर -5। जब आप इसे करेंगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन जनरली। in that case marginal utility of x will be this curve. So we have two various curves with us, one is total utility curve and another is the marginal utility curve. अब हम यहाँ से करेंगे कि इनकी क्या relationship है। The units of the commodity are taken on x axis. Now we will be drawing the relationship between the total utility and the marginal utility. So the first relationship is always a formula, that is the total utility is equal to sigma MUX while the marginal utility is equal to TUN minus TUN minus 1. That is ये शो करता है कि both are complementary to each other, यानी कि TU MU से कैलकुलेट हो सकता है और MU को TU से कैलकुलेट किया जा सकता है। The second relationship if you see,
after consumption of first unit both TU and MU are equal. So after consumption of first unit TU is equal to marginal utility. TU और MU equal है. अब हम देखेंगे कि जब तक आप देख रहे हैं, जब तक TU इंक्रीज हो रही है 20, 35, 45, 50 यहाँ तक इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट हो गई उसके बाद, तो हमने इसका एक डिवीजन बना लिया कि यहाँ तक ये इंक्रीज हो रही है. व्हेन TU इंक्रीजेस, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है. तो मार्जिनल यूटिलिटी का क्या बिहेवियर है, हम देख रहे हैं द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज द मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग. मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है, ये तो इंक्रीज हो रही है 20, 35, 45, 50, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी रिड्यूस हो रही है पर पॉजिटिव है. सो व्हेन TU इंक्रीजेस द MU फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है. इसके बाद हम देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी जो है कांस्टेंट हो गई है. कांस्टेंट का मतलब कि अब ये इंक्रीज नहीं हो रही है बल्कि कांस्टेंट हो गई है. इन दैट केस द मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो. दैट मीन्स इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी जो है ज़ीरो है. इसका मतलब है कि ये जो है एक्स एक्सिस को टच करेगी. आप चाहें तो इसे ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं. द मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव, दैट इज इट इज अबव द एक्सिस. ये क्या रहती है, एक्सिस के ऊपर रहती है. जब हम बात करते हैं कि मार्जिनल टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है, व्हेन TU is constant, मार्जिनल यूटिलिटी का क्या बिहेवियर है, द मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो, दैट इज इट टचेस द एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस को टच करती है. फिर इसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ. हम देख रहे हैं अब इसके बाद टोटल यूटिलिटी गिर गई है, 50 से 45 हो गई, इसका मतलब ये रिड्यूस हो गई है. इन दैट केस the marginal utility is negative. So when TU starts falling, जब total utility गिर गई है, the marginal utility is negative. जो marginal utility है वो negative है. इसका मतलब है कि यदि आप इसे डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो total utility यहाँ तो constant थी जिसके कारण इट इज़ ज़ीरो एट फिफ्थ यूनिट, लेकिन एज सुन एज इट स्टार्ट्स फॉलिंग, जैसे ही ये गिरना स्टार्ट करेगी, आप देख रहे हैं द मार्जिनल यूटिलिटी इज बिलो द एक्सिस. ये किसके नीचे है, एक्सिस के नीचे है, इम्प्लाइंग दैट इट इज़ नेगेटिव. सो देयर इज़ द रिलेशनशिप. जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं दो कॉन्सेप्ट्स में, इसका मतलब है हम ये शो कर रहे हैं कि दोनों का बिहेवियर कैसा है. विथ अ चेंज व्हाट इज द बिहेवियर. सो the first one we have done, basically it is of the formula. After consumption of first unit TU is equal to MU. जब TU इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या है, वैल्यू इज पॉजिटिव. यहाँ तक हम देखेंगे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है. जब टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो, एंड when the total utility starts falling the marginal utility becomes negative. एक चीज़ हमें बहुत ज़रूरी ध्यान रखनी है, वो ये कि जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है, व्हाट इज़ दैट पॉइंट नोन एज. कई बार आपके पास एज एन MCQ या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है. यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ सटाइटी. दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ सटाइटी. सटाइटी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन. पॉइंट ऑफ सैचुरेशन का मतलब होता है कि आफ्टर कंजम्पशन ऑफ दिस यूनिट, यानी कि इस यूनिट के बाद यदि हम कंजम्पशन को बढ़ाएंगे तो हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज नहीं होगी. दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट वेयर द कंज्यूमर गेट्स द सैचुरेशन पॉइंट.
ये वो पॉइंट है जहाँ पर कंज्यूमर का सैचुरेशन आ जाता है। एंड आफ्टर कंजम्पशन ऑफ दिस यूनिट इफ़ वन मोर यूनिट इज़ कंज्यूम्ड, यदि एक और यूनिट को वो कंज्यूम करेगा तो ऐसे केसेस में टोटल यूटिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। सो यू कैन राइट इट, इट इज़ पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now we will be doing the law of diminishing marginal utility, which is very important as it is the base of consumer equilibrium. The law of diminishing marginal utility, जब भी आप कोई भी law करेंगे, you will be doing certain laws in the economics. So जब भी हम कोई भी law करेंगे हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। The law should be followed by the statement. Statement का मतलब है कि इस law में हम क्या पढ़ते हैं, क्या ये law कहता है। A schedule, a diagram or a graph, then certain assumptions, and if the exceptions are there then those. So सबसे पहले हम करते हैं statement of the law. Statement of the law implies what does the law says. The law of diminishing marginal utility states that as more and more units of the commodity are consumed, कि जैसे जैसे हम additional units को consume करते जाते हैं, additional unit का मतलब है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जैसे जैसे हम additional units को consume करते जाते हैं, each additional unit yields the lesser utility. हर additional unit से मिलने वाली utility कम होती जाती है। हमने भी देखा कि जब हमने 1 से 2 किया 20 से 15 हो गया, सेकेंड से थर्ड किया इट रिड्यूस्ड टू 10, थर्ड से फोर्थ का कंजम्पशन किया इट रिड्यूस्ड टू 5. दिस इज़ द कॉमन बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर. ये कॉमन बिहेवियर है कंज्यूमर का कि जैसे जैसे वो सक्सेसिव कंजम्पशन करता चला जाता है उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, उस कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम होती चली जाती है. सपोजिंगली हियर वी टेक द एग्जांपल ऑफ फूड. If I am hungry, then I will start consuming the commodity. But a point comes when I stop eating. लेकिन एक पॉइंट आता है जब हम खाना बंद कर देते हैं. रीज़न बिकॉज दैट इज़ द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन. ये वो पॉइंट है जहाँ पर सैचुरेशन आ चुका है और उसके अलावा एक और एडिशनल यूनिट को कंज्यूम किया तो ऐसे केसेस में द मार्जिनल यूटिलिटी विल बिकम नेगेटिव. इसका मतलब है कि एडिशनल यूनिट विल नॉट यील्ड एनी यूटिलिटी बट इट विल बिकम नेगेटिव. So the marginal utility states that, the law of marginal utility states that कि जैसे जैसे हम additional यूनिट्स को कंज्यूम करते चले जाते हैं हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम होती चली जाती है. दैट इज़ द बेस ऑफ द कंजम्पशन और यही हमारे कंजम्पशन बिहेवियर का बेस है. देखा जाए तो ये हमारी नॉर्मल लाइफ में भी एप्लीकेबल है कि जैसे जैसे हम सक्सेसिव कंजम्पशन करते चले जाते हैं ऐसे में हमें मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है. फर्स्ट यूनिट पर मिलने वाली यूटिलिटी हमें 20 है, सेकंड पर मिलने वाली 15, थर्ड पर 10, फोर्थ पर इट इज़ 5, फिफ्थ पर 0 एंड एट सिक्स्थ यूनिट इट इज़ -5. तो when we will be joining all these points, the marginal utility will be a negatively sloped curve. जो marginal utility curve होगा वो क्या होगा, negatively sloped curve होगा. नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व क्या शो करता है, इट शोज कि जैसे जैसे यूनिट्स का कंजम्पशन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती चली जाएगी. एंड दिस पॉइंट एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन. इसे हम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहते हैं. दैट इज दिस इज द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बियॉन्ड विच इफ एडिशनल यूनिट्स आर कंज्यूम्ड, यदि इसके अलावा एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम किया गया तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. इस लॉ की कुछ अजम्पशंस है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि अजम्पशन का मतलब होता है कि लॉ को फिट करने के लिए, अपनी प्रेजेंट कंडीशंस में फिट करने के लिए हम कुछ चीज़ों को एज्यूम कर लेते हैं एंड देयर आर सर्टेन एग्जेम्पशंस ऑफ द लॉ ऑल्सो. सो एज आई टोल्ड यू, whenever there is the law there are certain assumptions related to the law. So we will be doing here the assumptions of marginal utility, the assumptions of the law of diminishing marginal utility. The first assumption is all the units of the commodity must be same. यानी कि
जो भी कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उनकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. इट शुड बी सेम, दैट इज कलर, शेप, साइज, एवरीथिंग शुड बी सेम, दैट इज. देन सक्सेसिव कंजम्पशन, यानी कि कंजम्पशन जो है वो सक्सेसिव होना चाहिए, एक के बाद एक जो है कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक यूनिट का कंजम्पशन अभी किया, सेकेंड यूनिट का कंजम्पशन हम आफ्टरनून में कर रहे हैं, थर्ड यूनिट का कंजम्पशन हम इवनिंग में कर रहे हैं. नहीं, इट शुड बी द सक्सेसिव कंजम्पशन. तभी ऐसा होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी, ज़ीरो होगी और नेगेटिव होगी. स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब है कि जो कंजम्पशन हम कर रहे हैं वो उसका जो यूनिट है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए. सपोजिंगली द वाटर, यदि हम वाटर का कंजम्पशन कर रहे हैं, द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वाटर इज़ ग्लास ऑफ वाटर. यदि हम कॉफ़ी की बात करें, इट इज़ अ कप ऑफ कॉफ़ी. सो वेन एवर वील बी टॉकिंग अबाउट द कंजम्पशन, द यूनिट शुड बी स्टैंडर्ड. देन कंज्यूमर स्टेट ऑफ माइंड इज़ कॉन्स्टेंट. कंज्यूमर का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कॉन्स्टेंट है, दैट इज़ कि वो किसी भी तरीके से डिप्रेशन में नहीं है, किसी भी तरीके से जो उसका माइंड है वो डिस्टर्ब नहीं है. एंड द कंज्यूमर इज़ रैशनल. कंज्यूमर रैशनल है. रैशनल का मतलब है कि कंज्यूमर कंजम्पशन इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहता है. द एक्ट ऑफ कंजम्पशन इज़ डन सो एज टू सेटिस्फाई दी वांट्स. देन देयर इज़ नो चेंज इन द इनकम of the consumer and the price of the commodity etc. ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो कि आपके कंजम्पशन डिसीजन को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं होना चाहिए. दैट इज़ व्हाट इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज. सपोजिंगली कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो हो सकता है उसके लिए कंजम्पशन जो है वो भी वो क्या कर दे, इंक्रीज़ कर दे. प्राइस ऑफ द कमोडिटी कम हो जाए तो ऐसे केसेस में भी वो क्या कर सकता है, कंजम्पशन को बढ़ा सकता है. सो देयर इज़ नो चेंज इन द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द कंज्यूमर्स डिसीजन. ऐसे कोई भी फैक्टर में चेंज नहीं होना चाहिए जो कि कंज्यूमर के डिसीजन को इफ़ेक्ट करता है. देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट. इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता क्या है. The marginal utility of money is the worth of a rupee for the consumer. यानी कि कंज्यूमर के लिए वर्थ ऑफ अ रुपी क्या है, रुपए की वैल्यू क्या है. The marginal utility of money varies from person to person. person to person वेरी करते हैं. सपोजिंगली मैं यहाँ ₹1 का एग्जाम्पल लूँ. दिस ₹1 will be having more marginal utility of money. Basically it is shown through MUM. This is marginal utility of money. यदि मैं किसी poor person की बात करूँ, this ₹1 create more utility for the poor person than that to the rich person. rich person से कहीं ज़्यादा utility किसके लिए होगी इस ₹1 की, this is for the poor person. तो the marginal utility of money is the worth of a rupee for the person and it varies from person to person. The marginal utility of money remains constant. यानी कि जब consumption किया जा रहा है तो कंज्यूमर की जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, यानी कि उसके लिए जो वैल्यू ऑफ मनी है जिसे वो खर्च कर रहा है, जिस पैसे को वो खर्च कर रहा है, जिस अमाउंट को वो खर्च कर रहा है, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं आता और हम ध्यान रखेंगे कि इसे भी हम मेजर कर सकते हैं. देन एक्सेप्शंस का मतलब है कि हमने सारी असम्पशंस को मान लिया, बावजूद इसके लॉ जो है कुछ केसेस में फिट नहीं होता. दीज एक्सेप्शंस आर डज नॉट अप्लाई टू रेयर कमोडिटीज़. रेयर कमोडिटीज़ पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है. फॉर एन एग्जांपल एंटीक पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि एंटीक अपने आप में एक है, एंटीक पीस है, हम कहते हैं एंटीक पीस है, यानी कि अपने आप में एक है. जो चीज़ अपने आप में एक है उसका सक्सेसिव कंजम्पशन पॉसिबल नहीं है, और क्योंकि उसे सक्सेसिव कंजम्पशन पॉसिबल नहीं है या उसको आप सक्सेसिवली नहीं ले सकते, इसीलिए ये जो लॉ है वो रेयर कमोडिटीज़ पर एप्लीकेबल नहीं है. बिकॉज द रेयर कमोडिटीज़ आर एक्चुअली रेयर विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड सक्सेसिवली, एंड until unless excessive consumption is done, the law of diminishing marginal utility does not apply. It doesn't apply to alcoholic
ड्रिंक्स, दैट मीन्स कि जो लोग एल्कोहल लेते हैं उसके लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज the more they take, the intensity increases, the marginal utility for each class of alcohol increases while they consume the alcohol. So it does not apply to those persons who take the alcohol drinks, because at times when they take the alcohol, each glass will yield them more marginal utility, and hence in that case basically the marginal utility increases and that does not decrease. That is why चाहे सक्सेसिव कंजम्पशन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन भी सक्सेसिव है, कमोडिटी की यूनिट्स भी सेम है, स्टैंडर्ड यूनिट भी एक ग्लास में ले रहा है, सक्सेसिवली कंज्यूम कर रहा है, सेम यूनिट्स को ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये लॉ है एल्कोहलिक ड्रिंक्स पर एप्लीकेबल नहीं होता. डज नॉट अप्लाई फॉर द हॉबीज़ ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, स्टैम्प्स एट्सेट्रा. वो लोग जिन्हें स्टैम्प्स, कॉइन्स, सीडीज, बुक्स कलेक्ट करने का शौक होता है, उनके लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज द मोर दे कलेक्ट द इंटेंसिटी टू कलेक्ट इंक्रीजेस. यानी कि जितना वो कलेक्ट करते चले जाते हैं इन चीज़ों को, कॉइन्स को, अलग अलग देशों की कॉइन्स को कलेक्ट कर लेंगे, फिर उनको लगता है अलग अलग एरास की कॉइन्स को कलेक्ट करें. सिमिलरली बुक्स है, स्टैम्प्स है, तो जिन लोगों को इस तरीके का शौक होता है उनकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज़ होती है, उनकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ नहीं होती. दैट मीन्स द मोर दे कलेक्ट, द मोर इंटेंसिटी टू कलेक्ट इज़ देयर, द कलेक्शन, द मोर इंटेंसिटी ऑफ कलेक्शन इज़ देयर. अगेन वही चीज़ है कि चाहे वो उसको सक्सेसिवली करें, सेम हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये लॉ जो है वो इस पर एप्लीकेबल नहीं होता. डस नॉट अप्लाई फॉर माइजर मैन. जो कंजूस लोग होते हैं उनके लिए भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को एस्टिमेट करना मुश्किल होता है. द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर अ माइजर मैन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट, एंड दैट इज़ वाई the law is not applicable on miser men. Miser men पर ये law applicable नहीं होता. So and again we can say the successive consumption for the miser men is not possible. So both the cases could be taken here. The marginal utility of money could not be estimated, and since it cannot be estimated, the law is not applicable on the miser man. So we have done the assumptions, the exceptions. The law of marginal utility which states that कि जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती चली जाएगी, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आएगा या पॉइंट ऑफ सैटिटी आएगा. एंड द पॉइंट ऑफ सैटिटी स्टेट्स दैट कि यदि इससे ज़्यादा यूनिट्स का कंजम्पशन किया तो ऐसे केसेस में द मार्जिनल यूटिलिटी विल नेगेटिव. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. So children, I hope so that you must have understood up to the law of diminishing marginal utility. Thank you children. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.